اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کا اجر و ثواب، فضیلت اور درود پڑھنے کی وجہ سے جو انسان کو نیکیاں ملتی ہے اس کا ذکر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کل کائنات کے لیے نبی بن کر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کل کائنات کے لیے رحمت بن کر آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے جو 23 سالہ دور ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑا. نبوت ملنے سے پہلے جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو. ایک عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات اور زوجہ بنی، جس نے نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کا ساتھ دیا، نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کا ساتھ دیا، اور جب تک وہ زندہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھ دیتی رہی. نام اس خاتون کا ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. آج 10 محرم ہے، آج 10 رمضان ہے، اور 10 رمضان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. ازواج مطہرات سب کے سب امت کی مائیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو آپ کے حرم میں آئی عورت جو پوری امت کے لیے ماں کا درجہ بنی، روحانی ماں بنی. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی؟ کیسے حضور کے نکاح میں آئی اور پھر کیسے حضور کے ساتھ رہی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا نام خویلد تھا، خدیجہ بنت خویلد، اور قریش قبیلے کی ایک شاخ ہے بنو اسد، اس شاخ کے ساتھ ان کا تعلق تھا.
اور چوتھے پشت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا خاندان آپس میں ملتا ہے۔ حضور کے نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 خاوندوں سے بیوہ ہو چکی۔ ایک خاوند کا نام حالہ تھا، جن سے حضرت خدیجہ کے 2 بیٹے ہوئے، اور وہ ابو حالہ جو ہے وہ ان کے خاوند کا نام، دوسرے ان کے خاوند اور بھی وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ بڑی عزت دار، شریف، حیا والی اور حسن و خوبی کی مالک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ والد ان کا مکہ کے بڑے تاجر اور کاروباری لوگوں میں ان کے والد کا نام تھا۔ 2 خاوندوں سے بیوہ ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی اچھے رشتے کے انتظار میں تھی۔ بڑے رشتے ان کے لیے آئے، لیکن اپنی شرافت، حسن و خوبی اور اپنے اوصاف کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا ان رشتوں سے۔ والد کے وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا کاروبار خود سنبھالا، لیکن عورت ذات ہونے کی وجہ سے ان کے مکہ کے لوگوں کے تجارت کے 2 سیزن تھے، ایک گرمی کا اور ایک سردی کا۔ ایک سفر شام کا ہوتا تھا اور ایک سفر یمن کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی اپنے غلاموں کو مال دے کر بیچتی، کبھی کوئی بندہ ڈھونڈ لیا، اس کے ساتھ بات ہو جاتی، بھائی مال میرا، محنت تیری، جا کے محنت مزدوری کر، جو ملے گا اس میں سے اتنا تجھے مل جائے گا اور باقی میرا ہو جائے گا۔ اس کو پرسنٹیج کہا جاتا ہے، مزاربت۔ معاملہ چلتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کو پہنچے۔ حضور کے چچا ہے ابو طالب، اس نے حضور کو مشورہ دیا کہ میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں کہ تجھے کاروبار کراؤں، بہتر ہے حضرت خدیجہ کا مال شام کی طرف لے جا کے اس سے کاروبار کر، نفع کما، پیسے بنا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کا شہرت تو پورے مکہ میں تھا۔ حضرت خدیجہ کو پتہ چلا تو اس نے خود حضور کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر جائیں، باقیوں کو جتنا میں دیتی ہوں اس سے بہتر اور زیادہ آپ کو دوں گی۔ اپنا غلام میسرہ کو ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر شام پہنچے۔ راستے کا سفر، وہاں کے دن، کاروبار کے اصول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور امانت داری، پورے سفر میں حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ یہ ساری چیزیں دیکھتے رہے، اور آپ نے حضرت خدیجہ کا مال سارا کا سارا بیچ دیا اور بڑے اچھے منافع کے ساتھ بیچ دیا۔ جب واپس آئے تو ایک قول کے مطابق میسرہ نے سارے احوال حضرت خدیجہ کے سامنے رکھے، اور ایک قول کے مطابق جب قافلہ واپس آ رہا تھا حضرت خدیجہ خود اپنے گھر کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی، اور حضور کے اوپر 2 فرشتے سایہ کیے ہوئے بادل کا حضور مکے میں داخل ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے جب دیکھا تو دل میں اور عظمت بڑھ گئی۔ ایک قول کے مطابق
हजरत खदीजा ने एक औरत को तैयार किया कि जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते की बात हो जाए। औरत ने जाकर हुजूर से अर्ज किया, आप शादी नहीं करेंगे? फरमाया करनी है, लेकिन कोई पैसे हो तो बंदा शादी करे। उस औरत ने कहा कि अगर मैं आपको ऐसी औरत का पता दूं जो हुस्न खूबी वाली भी हो, ऊंचे खानदान नस्ब वाली भी हो और पैसे वाली भी हो, तो जरूर फरमाया बता दे, कोई सोच लेंगे। उसने हजरत खदीजा का नाम लिया। हुजूर ने अपने चचा अबू तालिब से और एक कौल के मुताबिक हजरत हमजा दोनों से मशवरा किया। दोनों ने कहा ठीक है कर लेते हैं, खानदान की औरत है। और ये भी एक गल ज़हन च रखनी चाहिए कि उस औरत और उस मुआशरे में बेवा औरत के साथ निकाह करना कोई ऐब नहीं था। साडा तो अल्लाह माफ फरमाए, एक मर्तबा औरत बेवा हो जाए सारी जिंदगी उसको पूछता कोई, वहां पर दो बार तीन बार खुद हुजूर का देखे। हुजूर के लिए कोई रिश्तों की कमी थी, लेकिन हजरत खदीजा के साथ हुजूर का रिश्ता तय हो गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों खानदानों ने बड़ी खुशी के साथ कबूल कर लिया। जबकि हुजूर की उम्र 25 साल है और हजरत खदीजा की उम्र जो है वो 40 साल। खानदान के चंद बड़े अफराद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाकर हजरत खदीजा का रिश्ता हुआ और खुतबा निकाह अबू तालिब ने पढ़ा और हुजूर का हजरत खदीजा के साथ निकाह हुआ। हजरत खदीजा हुजूर के पास आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने से कितने साल पहले की बात है। हुजूर की उम्र 25 साल है, नबूवत मिली हुजूर को 40 साल की उम्र। हजरत खदीजा सिर्फ खुद नहीं आई बल्कि अपना जो कुछ था वो सारा हुजूर के कदमों में लाकर ले गए। उलमा ने अजीब नुक्ता लिखा है कि हुजूर के लिए रिश्ते बड़े थे। खुद हुजूर की उम्र 25 साल, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल। क्यों बड़ी उम्र के औरत के साथ शादी हो गई? क्योंकि अल्लाह ने हुजूर को नबूवत देनी थी और जब नबूवत मिलनी थी तो वहां पर सबने मुखालिफ होना था। मुखालिफ होके हुजूर को उस वक्त तसल्ली देने की, हुजूर का उस वक्त साथ देने की, हुजूर के लिए कोई घर की ऐसी समझदार औरत की जरूरत थी जो बाहर से थके हुए हारे हुए आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान घर आए तो उस घर में कोई तसल्ली देने वाला बंदा मौजूद हो। इसलिए हजरत खदीजा के साथ हुजूर का निकाह नबूवत मिलने से पहले ही हो। और इसी से हजरत खदीजा से हुजूर की औलाद है। 5 साल शादी के 5 साल बाद जाकर हजरत खदीजा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत कासिम की पैदाइश है। फिर उसके बाद हुजूर की 4 बेटियां हुई, हजरत ज़ैनब, उम्मे कलसूम, रुकैया और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला। ये 4 बेटियां हुजूर की हजरत खदीजा के बतन से। और वाकई वो मौका आया जिसके लिए हजरत खदीजा का हुजूर के साथ निकाह हुआ था। पहली जब वही आई उससे पहले अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर इबादत क्या करते थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद खाने तैयार करके हुजूर के पास लेकर जाते। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही आई, जिब्राइल अमीन को देखा, फितरतन हुजूर की तबीयत नासाज हो गई। घर पहुंचे, ज़म्मिलूनी दस्तिरूनी की बात कर रहे हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली वो खातून है जिसने एक नबी को तसल्ली दी। ये हजरत खदीजा का एजाज है, उनकी फजीलत है। और पहली वो खातून, सारी इंसानियत में पहले वो इंसान हजरत खदीजा जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी देखा। बाद में तो सबने देखा।
अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा तसल्ली दे रही है, ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, आपको अल्लाह कभी जाया नहीं करेगी। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ब व तक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक। आपकी आदत ही ऐसी है, आपके औसाफ ही ऐसे हैं, आपके कमालात ही ऐसे हैं कि अल्लाह कभी भी आपको जाया नहीं करेंगे। ऐसा बंदा कभी भी जाया होने वाला नहीं। हुजूर को तसल्ली हो। और इस हजरत खदीजा का ही एजाज है कि जब तक ये हुजूर के निकाह में रही, हुजूर ने किसी और औरत से शादी नहीं की। फिर जब हजरत खदीजा का इंतकाल होता है, उसके बाद जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर शादियां होती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह होते हैं। कुल हुजूर के 11 निकाह है, जिनमें 2 का इंतकाल हजरत खदीजा और हजरत ज़ैनब का हुजूर के जिंदगी में हुआ। बाकी 9 अज़वाज का जो इंतकाल है वो हुजूर के वफात के बाद है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके बारे में मुहद्दिसीन ने बाकायदा अबवाब बांधे हैं, इनकी फजीलत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कभी भी किसी औरत के बारे में मेरे जहन में आए नहीं। मागिर तो आला निस्वा, हाँ एक हजरत खदीजा है कि मैंने उसको देखा नहीं, उसके बावजूद बार बार मेरे दिल में आता था कि कैसी औरत थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जिक्र करे खदीजा यूं करती थी, जब भी बात करे खदीजा यूं कहती थी। एक दिन मैंने पूछ भी लिया, मैंने कहा रसूलल्लाह और आपकी कोई ज़ौजा नहीं है? बार बार आप खदीजा का नाम ले रहे हैं, बार बार खदीजा का तस्करा कर रहे हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा ने उस वक्त मेरी तस्दीक की थी जब सब ने मेरी तकजीब की। खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया था जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। खदीजा ने उस वक्त मुझे तसल्ली दी थी जब सारे मेरे दुश्मन हो गए। और फरमाया करते हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब भी घर में कोई अच्छी चीज बनती, कोई बकरा, कोई शोरबा, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते शोरबा जरा ज्यादा कर लेना, हजरत खदीजा के फलां सुहैली उनके घर जो है वो ये चीज भी। आखिर वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा को याद कर। तो आज हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफात। हम लोग सहाबा की सीरत को नहीं पढ़ते। हिकायात सहाबा एक किताब है, बहुत प्यारी किताब है, उसमें इतने प्यारे प्यारे वाकयात है, सहाबा किराम के इतने प्यारे प्यारे किस्से हैं। हम पता नहीं किन किस्सों में पढ़ गए, कौन से नावल पढ़ने शुरू कर गए और किन कहानियों में अपने आप को जो है वो डाल दिया। सच्चे कहानियां, सच्चे किस्से जिनसे हुजूर की मोहब्बत में मिले, जिनसे अल्लाह की वहदानियत के किस्से मिले, जहां अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी की बातें हों, जो अल्लाह की जात पर जान नचावर करने वाले लोगों के तस्करे हों, जहां पर दीन इस्लाम पर मर मिटने वाले लोगों के तस्करे हों। ऐसे किस्से में सुनूं, ऐसे वाकयात में पढ़ूं, ईमान जोबन पे आ जाए, ईमानी जज्बात बेदार हो, इन हजरात की अकीदत दिल में आ जाए, एहतराम के लिए आंख और सर झुके, और जिनकी मोहब्बत मेरे और आपके ईमान का हिस्सा है। घरों में हम ऐसे वाकयात पढ़ने का इस्तेमाल करें, ऐसे किताबें घरों में मौजूद हो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी किताबें आ गई हैं, फलाने साहबी की जिंदगी के वाकयात, हजरत आयशा की जिंदगी के, हजरत अनस की जिंदगी के, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत फातिमा, हजरत खदीजा, तमाम के तकरीबन उनके जिंदगी के किस्से, 100 किस्से, 50 वाकयात एक एक बंदा रखे घर में और खुद भी पढ़े, बच्चों को भी सुनाए, तरबियत हो बच्चों की। मशहूर है ना, एक जैसे आमतौर पर स्कूलों में पूछते हैं, हाँ बच्चे तूने क्या बनना, तूने क्या बनना, तूने क्या बनना।
कोई कहता मैं पायलट बनूंगा, कोई मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं उस्ताद बनूंगा। उस्ताद पूछते रहे, एक बच्चे ने कह दिया जी मैं सहाबी बनूंगा। हालांकि सहाबी अब बनना बन ही नहीं सकता। वही लोग थे जिन्होंने हुजूर को देखा था, वो सहाबा हो गए बस। उस्ताद हैरत में डूब गए कि पता नहीं बच्चे ने कैसे कह दिया कि मैं सहाबी बनूंगा। अगले दिन उस बच्चे के वालिदैन को स्कूल बुलाया। हाँ भाई, कल मैंने सवाल किया और आपका बच्चा कहता है कि मैं सहाबी बनूंगा, कैसे इसने कह दिया? वालिदैन कहने लगे, हमारे घर में रोजाना सहाबे किराम के वाक़यात की तालीम होती है, हिकायात सहाबा की तालीम होती है, सहाबे किराम के वाक़यात सुनाए जाते हैं, कैसे उनकी नमाज, कैसे उनका हुजूर के साथ मोहब्बत, कैसे उनके आपस में ताल्लुक, कैसे उनके हमदर्दी आपस की, कैसे एक दूसरे पर मर मिटने वाले लोग, कैसे ईसार और हमदर्दी के साथ जिंदगी गुजारने वाले लोग, कैसे अल्लाह के आशिक, कैसे अल्लाह के रसूल के आशिक, कैसे कुरान के कारी, कैसे कुरान पढ़ने वाले। जब ये वाक़यात इस बच्चे ने सुने तो इसने कहा मैं भी ऐसे ही बनूंगा जैसे ये लोग। अब इसको ये तो नहीं पता था कि सहाबी बंदा नहीं बन सकता, लेकिन इसका जज्बा तो बना कि मैं भी ऐसे ही बनूंगा जिस तरह ये लोग होते। इसलिए हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला का कौल है कि भाई उन लोगों की इक्तिदा करो जो दुनिया से जा चुके, वो सहाबे किराम है। क्योंकि जिंदा बंदा उससे किसी भी टाइम में फितने का सुदूर हो सकता है, फितना उससे बर्पा हो सकता है। तो बहरहाल मुझे और आपको कोशिश भी करनी है कि जो खासतौर पर अज़वाज मुतहरात है, खुलफाए राशिदीन है, अशरा मुबश्शरा है, जो मशहूर सहाबा है, कम से कम उनकी सीरत, उनके वाक़यात, उनके फज़ाइल, उनके कुछ तज़किरे मेरे और आपकी मजलिसों में हो। अल्लाह माफ़ फरमाए, आने वाला दौर ऐसा दौर है कि उसमें अपना ईमान बचाना मुश्किल है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक वक्त आएगा ईमान बचाना ऐसा होगा जैसे आग के ऊपर अंगारा रखना। अगर हम खुद कुरान के साथ ताल्लुक रखेंगे, मस्जिद के साथ ताल्लुक रखेंगे, दीनी मकतब के साथ मेरा और आपका ताल्लुक होगा, बच्चे की दीनी तरबियत की फिक्र होगी, बच्चे की दीनी मालूमात में इजाफे की कोशिश करूंगा, तो यही बच्चों के जहन के ऊपर नक्श हो जाएगा। कल मेरा और आपका बच्चा किसी फितने का शिकार नहीं होगा, मेरा और आपका बच्चा कल किसी गुमराही की शिकार नहीं होगा। वरना हर तरफ ऐसे जैसे तीर बरस रहे गुमराही। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हज़रत सहाबे किराम के नस्ल पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। करीम अल्लाह हम सब का सुनना सुनाना कबूल फरमा, बैठना कबूल फरमा, अपने शाया निशान बदला नसीब फरमा। रमज़ान के पहले अशरे का आखिरी दिन है, अल्लाह हम सब के साथ अपने रहमत का वाला मामला फरमा, अपने करम वाला मामला फरमा, फजल वाला मामला फरमा। आने वाला अशरा अल्लाह मग़फ़िरत का अशरा बना, हम सब के माफ़ी का ऐलान फरमा, हम सब के बख्शिश का ऐलान फरमा। रब्बे करीम तो हमें बख्श देगा, तेरे खुदाई में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हमें माफ़ फरमा, हम सबको माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन को माफ़ फरमा, बहन भाइयों को माफ़ फरमा, रिश्तेदार अज़ीज़ और क़ारिब को माफ़ फरमा, जो हमसे ताल्लुक़ रखते हैं अल्लाह उन सब के माफ़ी का फैसला फरमा। इस रमज़ान को हम सब के लिए खैर व बरकत का बाइस बना, आसानियों का बाइस बना, इबादत वाला रमज़ान हो, अपनी रज़ा के काम करने वाला रमज़ान हो, के लिए इसको बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन बिरहमतिक।